بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ نا بیسکلی اسٹارٹ لیں گے کلائمیٹ چینج, واٹ کازز دس کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پاکستان, وائی از پاکستان 7th most vulnerable country in the world, despite the fact that we only contribute 0.8% of greenhouse gas emissions. Basically وہ ہم نے کل بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ گرین ہاؤس گیسز کیا ہوتی ہیں, جس میں واٹر ویپرز ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونو آکسائڈ ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, میتھین ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بیسکلی ان کا سورس کیا ہے؟ دو میجر سورسز ہیں آف گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. نمبر 1, برننگ آف فاسل فیول, یہ جو پیٹرول, تیل, ڈیزل, سو فرنس آئل, سو آن اینڈ سو فورتھ, اینڈ آلسو کول. اچھا, اب پاکستان 0.8% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو یہ وائی از اٹ 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ان دا ورلڈ ٹو کلائمیٹ چینج, جس میں ڈراؤٹ ہو سکتی ہے, جس میں یہ ہیٹ ویوز ہو سکتی ہیں, جس میں میسو یا سپر فلڈز ہو سکتے ہیں, لینڈ ایروژن ہے, اینڈ ڈسٹرکشن آف کراپس ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ٹاپ 5 کنٹریز ان دا ورلڈ, بیسکلی تو ہم دیکھنا چاہیے کہ ٹاپ 10 کون ہیں. ٹاپ 10 ورلڈس ٹاپ 10 کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیٹرس. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر اگر آپ یہ ایک رابرٹ ریپیئر ہے, سینئر کنٹریبیوٹر آن انرجی, ان لوگوں کی جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے چائنا از نمبر 1. اس میں انہوں نے 2018 کی دی ہیں لیولز اور فگرز. نمبر 2 از یونائٹڈ اسٹیٹس, کہ یہ بیسکلی 9.43 بلین میٹرک ٹنز جو ہے چائنا پروڈیوس کر رہا ہے, 5.15 بلین میٹرک ٹنز یو ایس پروڈیوس کر. تھرڈ لارجسٹ کون ہے جی؟ اب چائنا بھی ہمارا نیبر ہے. تھرڈ لارجسٹ انڈیا ہے, 2.48 بلین میٹرک ٹنز. ایک اور ہمارا نیبر رشیا, یہ سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ اندر ہمارا نیبرنگ ایریا میں ایک کنٹری ہے. دے آر کنٹریبیوٹنگ 1.55 بلین ٹنز میٹرک ٹنز. اس کے بعد جاپان, جرمنی, ساؤتھ کوریا, ایران, سعودی عربیہ اینڈ کینیڈا. سعودی عربیہ اور ایران another big contributor of carbon dioxide and other greenhouse gas emissions is our neighbor. اب یہ تو ٹاپ 5 جس طرح آپ کو بتایا ہے وہ تو چائنا, یو ایس, انڈیا, رشیا اینڈ جاپان ہے. ان میں اونلی یونائٹڈ اسٹیٹ از لوکیٹڈ ایٹ further distance. باقی تو سارے کے سارے ہمارے بالکل امیڈیٹ نیبرہڈ میں, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ وی آر دا 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ان دا ورلڈ, بیکاز جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور ادر گرین ہاؤس گیسز ہیں, واٹر ویپرز ہیں, دے ڈونٹ نیڈ اے ویزا ٹو کم ٹو پاکستان فرام انڈیا, ایران, چائنا اور رشیا, اور ایون ایز فار ایز جاپان. تو وہ ایون ڈسٹریبیوشن ہونی ہے, تو وہ اس وجہ سے پاکستان کے اندر گرین ہاؤس گیسز جو ہے نا یہ ٹھیک ہیوی فرام آل سائڈس, ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ, ہر طرف سے ہم پاکستان پہ گرین ہاؤس گیسز کی یہی سمجھیے لگا رہا ہے. وائی آر وی 7th موسٹ ولنریبل کنٹری؟ بیکاز ان گیسز کو ایبزارب کرنے کے لیے ایک سنک چاہیے, جو درخت ہیں, ٹریز ہیں, گرین ٹریز ہیں. ان میں جو گرین کانٹینٹ ہے وہ کلوروفل ہوتا ہے. وتھ سن لائٹ دا پروسیس از کالڈ فوٹوسنتھسس. فوٹوسنتھسس میں کیا ہوتا ہے کہ carbon dioxide, carbon monoxide and other gases are absorbed by the plants and their leaves, اور اس کے بعد they release oxygen. ٹھیک ہے, the blue content, وہ جس سے we call this a blue planet, اور وہ blue content آتا ہے, oxygen. اب بگیسٹ کنٹریبیوٹر میں نے آپ کو بتایا فاسل فیولز ہیں انکلوڈنگ کول, اور سیکنڈ بگیسٹ کنٹریبیوٹر کون آ گیا؟ ڈیفارسٹیشن, جس کے اوپر ہمارے گورنمنٹ نے ایک, اب ٹری کور کے حساب سے دیکھ لیں تو وہ اب پرسنٹیج آف پاکستان ایریا ہے دیٹ از فارسٹ از ڈسپیوٹیڈ. یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان کا ٹوٹل فارسٹ کور ایریا جو ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO estimates 2.2% of the total land of Pakistan is covered by forests. On the contrary, Pakistan Forest Institute estimates it to be 5.1%. مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو ریکوائرمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ ہے 12 to 15% لینڈ میس کے اوپر فارسٹ کور ہونا چاہیے. اب چائنا, رشیا, یہ لوگ کیوں اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہوئے؟ بیکاز آف ان
increased greenhouse gases because China का 30+% land mass is covered with forests. India का 24% land mass is covered with forests. ईरान का इसी तरह 15-16% है which is covered with forests. और पाकिस्तान का 2.2% is covered with forests. जितना पाकिस्तान है इंडिया के पास इतना पूरा फॉरेस्ट कवर मौजूद है और जो साइज पाकिस्तान का है यानी कि 3 लाख स्क्वायर माइल्स इंडिया के पास फॉरेस्ट है और हमारे पास 3 लाख स्क्वायर माइल का 2% फॉरेस्ट है यानी कि ये 40,000 भी नहीं बनता स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अंडर फॉरेस्ट. 74% इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इट्स थ्रू कोल बर्निंग. चाइना की 57% है थ्रू कोल बर्निंग बिकॉज उनके पास चीपली अवेलेबल है. अफ्रीका से भी लेकर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लेकर आ रहे हैं, इंडिया में भी यही है. तो अब हम किस तरह फाइट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज? वी कैन ओनली डू इट थ्रू लेसर फॉसिल फ्यूल बर्निंग जिसके चांसेस बहुत कम है. इलेक्ट्रिसिटी कार बाइक्स वगैरह का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं बट दैट विल टेक टाइम एंड वी डोंट हैव टाइम. उसके लिए हम क्या कर सकते? वी हैव टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. ये डिफॉरेस्टेशन रोकना हमारे लिए बिल्कुल ये इमरजेंसी बुनियादों पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर डूम्ड एज अ नेशन. एनीहाउ, अब हमने एक पहले भी रिपोर्ट की है कि वी स्टार्टेड अवर दिस एंटायर एक्सरसाइज फ्रॉम मोजर आफ्ताब पड़ी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जो कि जिसमें मैसिव जो डिफॉरेस्टेशन की गई है और फॉरेस्ट की लैंड की एनक्रोचमेंट बेताशा कर ली गई है. यानी कि देयर इज नो चांस फॉर रिफॉरेस्टेशन ऑफ दैट एरिया अनलेस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 4 मई 2018 वाला वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो. 2210 एकड़ ज़मीन मुकम्मल तौर पर बागजार हो इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर उस जगह को दोबारा से रिफॉरेस्टेशन की जाए. अब वहाँ पर डायलेमा ये है कि बड़े बड़े हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े के प्लेशियल पैलेसेस बना लिए हैं, मल्लात बना लिए हैं, फोर्ट्रेसेस बना लिए हैं, किले बनाए हुए हैं वहाँ पर. तो अब ये तो एक बिल्कुल ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड करना है. अगर यही लोग वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे अपने मकान, कोठियाँ, मकानात, फोर्ट्रेसेस बना लेंगे तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा ये यानी कि स्टेट लैंड लूट का माल है, जाओ जाके लुटो तो फुटो. That is not fair. That shall not happen. But that is happening, unfortunately. अब सबसे पहला जो अलॉट किया इसने मलिक रियाज ने वो मेजर जनरल आसिफ अली को किया. मेजर जनरल आसिफ अली कौन था? ये डायरेक्टर जनरल WNR यानी कि वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन डायरेक्टरेट ऑफ AG ब्रांच, एडिशनल जनरल ब्रांच ऑफ GHQ. और इसी ने ये इलीगल DHA वैली का कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करवाया, फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट करवाया, फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स खुलवाए और जिससे मैसिव किस्म का स्केल पर फ्रॉड किया गया और 70,000, 80,000 लाख से ज़ायद फैक्ट्रीज जो है ना आज भुगत रहे हैं उनकी सारी जिंदगियों की जमा पूंजियाँ लूट के लेके, क्योंकि स्कीम ही 5 और 8 मरले की थी. और इश्तहार में तो किसी ने आज तक ये नहीं दिखाया था कि जनाब ये इसके अंदर जॉइंट वेंचर भी वो हुआ है. अकाउंट जो है ऑपरेट मलिक रियाज इनके साथ बैठे करेगा, काला चोर. और वो जो अस्करी बैंक वाले हैं वो भी क्रिमिनल्स थे कि उन्होंने बगैर बैंक गारंटी लिए लोगों को अरबों खरबों रुपया जो है उठाकर एक काले चोर मलिक रियाज के हवाले कर दिया विदाउट एनी बैंक गारंटी और एनी अदर. कोई परफॉर्मेंस बॉन्ड लेता, कोई इंश्योरेंस गारंटी लेता, कोई और इस किस्म की इंश्योरेंस लेता कि यार ये पैसा लूट का नहीं है, लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी है. बैंकों में लोग पैसे इसलिए देते हैं बिकॉज पीपल ट्रस्ट द बैंक्स कि बैंक्स जो है उनसे धोखा नहीं करेंगे. ठीक है, और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, आर्मी की आर्मी उनसे धोखा नहीं करेगी. लेकिन इस केस में तो सरासर धोखा हुआ है. अब ये तो अब इस DH इस्लामाबाद की आप वारदातें देखें, देयर टू मैनी. इन्होंने UPI को लूटा, 22.5 अरब रुपया उनसे लूटा. इसी जो फॉरेस्ट है ये रख तक पड़ी फॉरेस्ट, इस पर उन्होंने प्लॉट्स बनाकर बेचे और 6 अरब 80 करोड़ रुपया लूटा उन्होंने. UPI का पेंशनर फंड था, गरीब लोगों की पेंशन्स थी. ठीक है, ये पिछले सरकारी दौर में. तो अब मामला यहाँ तक ख़राब हो चुका है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं रोकते तो ये जो अभी एक मेरी नज़र से गुजरी थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, PTI गवर्नमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस. इसके अंदर ये जो एडवाइज़र टू PM ऑन क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम थे, फेडरल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज खिज़र रियाद खान थे. ठीक है ना, और मलिक अमीन असलम डायरेक्टेड
for reactivation of Federal Forestry Board, which was approved by the Council of Common Interest last year under the National Forest. This meeting took place in September 2018. लेकिन उसके बाद भी कोई उसके टर्म्स और रेफरेंस नहीं सामने आए. 10 बिलियन सुनामी ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट तो सामने है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के लिए कोई पॉलिसी इस गवर्नमेंट के अभी तक सामने नहीं आई, जो कि इस मुल्क के हर शख्स के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इमिनेंट डेंजर है. ये नहीं है कि इट विल कम आफ्टर अ व्हाइल, ये आ रही है, आ चुकी है. और हम वी आर रियली इन अ पैथेटिक मोड as a country, क्योंकि we need proactive approach. लेकिन अगर हमारे पास पॉलिसी नहीं होगी डिफॉरेस्टेशन की, आप डिफॉरेस्टेशन को जो 2010 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें डिफॉरेस्टेशन के ऊपर था. 2015 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने साजिश करते हुए डिफॉरेस्टेशन को उसमें से निकाला, और अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पीटीआई गवर्नमेंट लेकर आ रही है, और अभी तक इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुई. ज़्यादा से ज़्यादा कानून क्या कहता है कि आप टिम्बर एक सूबे से दूसरे सूबे में ले जा सकते हैं, अगर लेके जाएंगे तो पता नहीं कोई फाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा. एक और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. हमारा फॉरेस्ट एक्ट है जो अभी तक यहाँ पर इन फील्ड है, दैट इज़ फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसके सेक्शन 63 के तहत अगर आप एक दरख्त काटें तो 2 साल सज़ा है. डीफेस करें इसको, ये जो बुत्ती वगैरह लगी होती है फॉरेस्ट के, और फॉरेस्ट के अंदर जो वहाँ पर कुछ चीज़ें डायरेक्शंस वगैरह लिखी हुई होती हैं, उनको डीफेस करें तो उस पर भी 2 साल सज़ा है. लेकिन मलिक रियाज ने एडमिटेडली 9000 प्लस दरख्त कटवाए दरख्त बड़ी के, जिस पे डैमेज रिपोर्ट्स आई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ. ठीक है, सिर्फ उसी हिसाब से चले जाए तो 18,000 साल तो वैसे ही इसको सजा मिलती है मलिक रियाज को, इतने दरख्त कटवाए हैं वहाँ से 9-10 हज़ार. तो ये लॉ है, लेकिन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे इन एनी फॉर्म. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. डिफॉरेस्टेशन पे कोई पॉलिसी नहीं है. डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कंटिन्यूड है. अभी हमें खबर मिल रही है कि रख लोई बेर में जो बची कुछ जगह है, ये हाजी अमजद जो उसका वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, MPA भी है PP13 से, वो सुने उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर से ये जो बच्चा कुछ लोई बेर फॉरेस्ट है उसको भी लूटना चाहता है. हमने तो फील्ड विजिट में आपको बताया कि उन्होंने दरख्त पड़ी में गोल्फ क्लब बना रखा है, ये जर्नैलों की कोठियाँ बना रखी हैं ऊपर, जिस जगह से हम आपको जगह की रिपोर्ट कर रहे थे, फ्रॉम द हार्ट ऑफ दरख्त फॉरेस्ट. उधर तो पूरे स्ट्रीट्स और लंबी चौड़ी वहाँ पे बड़े बड़े मकान, एज इफ कि ये कोई मासी बेड़ है कि जो मर्जी है लल्लू पंजू आए और इधर एक मकान बना कर तो आगे चलता मैंने पे. ऐसे नहीं होगा. स्टेट लैंड है, और स्टेट लैंड को हम इस तरह लोगों की पर्सनल विम्स और विशेस के ऊपर कुर्बान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.